Hello students, how are you? Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, we will discuss different trigonometric questions for class 10. Okay, so I think it is the second lecture for class 10, and in the first lecture we had discussed the trigonometric ratios. Okay, different types of trigonometric ratio, just like your sin theta, cos theta, sec theta, tan theta, cosec theta, just like that. Okay, so now using this trigonometric ratios, trigonometric identities was also there, and we had discussed also from where actually these identities I think were introduced. Okay, and by which concept, okay, that these identities, trigonometric identities, could be proved, that all were discussed. Okay, so in this lecture we will solve some questions regarding on the basis of the previous lectures. Okay, so it is the NCERT actually this exercise level questions. Okay, and the R.D. Sharma questions also. Okay, reference questions and this NCERT exercise questions. So just write the first question, today's first question. If AB equals to 24, BC equals to 7, if ये लेक्चर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये सब बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ये सब क्वेश्चंस ही बोर्ड में आएगा. ठीक है, AB equals to 24, BC equals to 7, BC equals to 7 centimeter, BC equals to 7 centimeter. Find sin A cos A. Okay, sin A cos A. और पॉइंट नंबर 2 sin C cos C. ये दो वैल्यू आपको निकालना है. ठीक है, ये दोनों का वैल्यू आपको निकालना है. नाउ यहाँ पर AB और 24, BC 7, दैट मीन्स एक राइट एंगल ट्राइंगल है. मैंने बोला था कि ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल है. सो दैट मीन्स ABC. ये AB यहाँ पर 24 सेंटीमीटर है, BC यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है. तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? हियर वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट जो पाइथागोरस थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एज यू ऑल. ओके, तो इट इज योर C एंगल. Okay, it is your C angle and it is your A angle and it is your right angle triangle. That means 90 degree right angle. Agree? तो AC square equals to AB square plus BC square. तो यहाँ पर AC square equals to AB square मतलब 24 whole square और BC square that means 7 square. So AC square equals to 24 whole square, that means what क्या होगा? 576 plus 49. So that means AC square equals to 625. 625 means 25 whole square. तो AC square और इधर 25 whole square, both sides square cancel. Only AC equals to 25 आ गया. So that means 25 centimeter भी आप use कर सकते हैं. So that means so AB equals to 24 centimeter, BC equals to 7 centimeter and AC equals to 5 centimeter. अब आपको क्या निकालना है? नाउ ये 1 का इस चीज का वैल्यू आपको निकालना है. ठीक है, यहां पर सबसे पहले आपको नोटिस क्या करना है? सबसे पहले ये जो एंगल है, ये एंगल क्या दिया हुआ है? ए एंगल दिया हुआ है. ठीक है, तो हमेशा आप ये चीज याद रखिएगा, whatever the angle will be given in the question, that angle
that you have to see the first structure of this question and after that the figure of these questions. That is your figure. Now according to the figure, this A angle is not attached with the base. Here you can see ये बेस है, हाँ ये बेस है, तो यहां पर तो C एंगल अटैच्ड है बेस के साथ, ठीक है ना। जब भी कोई भी एंगल का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल रहे हैं, वो एंगल सबसे पहले तो क्या होना पड़ेगा, बेस के साथ अटैच्ड होना पड़ेगा। यहां पर C एंगल बेस के साथ अटैच्ड है, ए एंगल तो ऊपर है, ए एंगल को सबसे पहले मुझे बेस के साथ अटैच्ड करना पड़ेगा, बेस के साथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स जो भी एंगल क्वेश्चन में दिया जाएगा, ए एंगल ए, आप उसी एंगल के साथ जो साइड है उसी को ही आप बेस कंसीडर करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर अगर मुझे ए एंगल लेके डील करना है तो ए एंगल क्या है, इस साइड के साथ अटैच्ड है, इस साइड के साथ अटैच्ड है। दैट मीन्स ये आपको बेस कंसीडर करना पड़ेगा, ये बेस, ये हाइट, और हाइपोटेन्यूज तो एक ही रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, ये तो फॉर्मूला है। अब साइन ए के लिए हाइट कौन सा होगा, ये हो जाएगा बेटा बीसी बाई हाइपोटेन्यूज, तो एसी है, तो बीसी मतलब 7/25। कॉस ए ये क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो दैट मीन्स बेस क्या होगा, यहां पर बेस ये होगा, ए बी वाला यहां पर बेस हो जाएगा, ए बी बाई ए सी, दैट मीन्स 24/25। तो ये है कॉस, साइन ए का वैल्यू भी निकल गया, कॉस ए का वैल्यू भी निकल गया। सो साइन ए कॉस ए, बस वैल्यू निकाल लो, 7/25 इंटू 24/25, बस अब वैल्यू निकाल लो 625, और इधर 24 इंटू 7 कितना होता है 28, और इधर 2, 7 2 से 14, और इधर 18, 188/625। ओके, ये मिल गया आपका किसका वैल्यू, साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो दैट मीन्स समझ ये है, जो भी एंगल आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, यहां पर सोचिएगा जो भी एंगल है वही एंगल के साथ जो साइड होगा वही बेस होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को कंसीडर नहीं करना है, ये दोनों साइड में जो होगा, ठीक है, या तो बेस ये होगा या फिर बेस ये होगा। ये हाइपोटेन्यूज को कभी भी बेस कंसीडर नहीं करना है आपको, ठीक है। मतलब 90 डिग्री एंगल और वो एंगल, दैट मीन्स जो एंगल आपको निकालने वाला है, यहां पर जो एंगल दिया जाएगा वही एंगल और 90 डिग्री एंगल जिस साइड के साथ अटैच्ड होगा वही साइड यहां पर बेस होगा। यहां पर ए एंगल दिया गया है तो आपको देखना है, हाँ ए एंगल और 90 डिग्री एंगल कौन से साइड के साथ लगा हुआ है, चिपका हुआ है, वही साइड यहां पर बेस होगा। टेबल में देख रहा हूं कि 90 डिग्री एंगल और ए एंगल इस साइड के साथ अटैच्ड है, तो ये बेस होगा, ये हाइट होगा, और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सी के लिए जाते हैं, सी के लिए देखो, सी के लिए जाते हैं क्या होता है, देखो सिमिलरली पॉइंट नंबर 2, साइन सी क्या होगा, फॉर्मूला तो वही होगा, हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, हाइट बाय हाइपोटेन्यूज, बट यहां पर सी तो यही है, सी तो यही है, हाइट ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, ठीक है ना। ये है ना सी, ये देखो, तो ये बेस है कि नहीं, और ये हाइट है, तो ए बी बाई ए सी, दैट मीन्स 24/25। cos c, that means base by hypotenuse, that means base क्या है, BC by AC, so BC by AC मतलब 7/25 सेंटीमीटर। सो ये दोनों मिलके नाउ साइन C cos C इक्वल्स टू
24/25 into 7/25, 188/625, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया समरी क्या बोला है मैंने? हाँ, मतलब जो एंगल क्वेश्चन में दिया जाएगा, यहां पर सी एंगल दिया गया है, इसलिए आपने देखा, अच्छा सी एंगल और 90 डिग्री एंगल, ये दोनों एंगल कौन से साइड के साथ अटैच्ड है? जिस साइड के साथ अटैच्ड होगा वही साइड बेस होगा। ठीक है, वही साइड बेस होगा। तो यहां पर देखा होगा सी एंगल, हाँ यहां पर ये सी है और ये है 90 डिग्री एंगल, इस साइड के साथ देखते ये बेस होगा, ये ऑब्वियसली तो ये हाइट होगा और ये तो हाइपोटेन्यूसली होगा। ठीक है, ठीक है। नाउ और एक क्वेश्चन करते हैं। इफ क्वेश्चन नंबर 2 जाओ। इफ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सब। ठीक है, इफ फॉर द ट्राइंगल PQR, if for the triangle, if for the triangle PQR, ठीक है, for the triangle PQR, PQ equals to 12, PQ equals to 12 and PR equals to 13, then find, आपको वैल्यू निकालना है 10P minus cot R, 10P minus cot R, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, ओके। ना यहां पर PQR ट्राइंगल क्वेश्चन में बोला गया, PQR ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, PQR, तो PQ यहां पर 12 सेंटीमीटर, PR यहां पर 13 सेंटीमीटर, और ये हम लोग नहीं जानते। ठीक है, तो लिखो गिवन, तो दैट मींस ये आपका 90 डिग्री होगा, ये R है और ये P है। ठीक है, तो गिवन PQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो दैट मींस PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी नॉट PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर। तो लो PQ स्क्वायर मतलब क्या है, 12 स्क्वायर, QR मतलब यहां पर QR तो पता नहीं है, QR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर, दैट मींस 13 स्क्वायर। सो दैट मींस QR स्क्वायर इक्वल्स टू 169, 13 स्क्वायर मतलब है 169, माइनस 12 स्क्वायर मतलब है 144। सो ये माइनस करके 25, दैट मींस QR होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25, दैट मींस QR इक्वल्स टू 25 मतलब क्या है, 5 स्क्वायर है ना, है कि नहीं? तो दैट मींस QR इक्वल्स टू 5, QR निकल गया 5 सेंटीमीटर। ओके, नाउ 10P, अब फॉर्मूला क्या होता है, हाइट बाय बेस, हाइट बाय बेस। अच्छा, अब नोटिस करो एंगल क्या है, P है, एंगल क्या है, P है, मतलब ये एंगल, तो दैट मींस P एंगल और 90 डिग्री एंगल इस साइड के साथ रिलेटेड है, दैट मींस दिस साइड इज द बेस एंड दिस साइड इज द हाइट। ओके, ये P एंगल और ये 90 डिग्री एंगल, दैट मींस ये दोनों एंगल जिस भी साइड के साथ अटैच्ड होगा वही बेस होगा, जस्ट रख लीजिए याद बस। तो ये PQ यहां पर बेस होगा और QR यहां पर हाइट होगा, सो दैट मींस ये बेस ये हाइट, तो दैट मींस यहां पर क्या होगा, QR हाइट बाय बेस है ना, QR बाय PQ, तो QR अभी भी निकाला है जस्ट ये दिस।
कॉट आर, हाँ आर एंगल मतलब कौन सा है, ये, तो आर एंगल 90 डिग्री दोनों इस साइड के साथ अटैच्ड है, दैट मींस दिस साइड इज द बेस, सो दैट मींस बेस बाय हाइट है ना फॉर्मूला, बेस बाय हाइट। तो यहां पर बेस क्या है, बेस क्या है, ये होगा, हाइट क्या है, पी क्यू होगा। सो यहां पर 12 बाई क्या होगा 5/12 है कि नहीं, क्यू आर का वैल्यू तो 5 निकला था, ठीक है। सो 10p माइनस कॉट आर इक्वल्स टू 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0। इसका वैल्यू तो आपको निकालना था कि फाइंड ए, यही तो क्वेश्चन था। 10p माइनस कॉट आर, वैल्यू निकल गया, यू गॉट द वैल्यू, ओके। नाउ उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, इफ थर्ड क्वेश्चन लिखो, इफ साइन ए इक्वल्स टू, if sin A equals to 3/4, sin A equals to, if sin A equals to 3/4, then find 10A and sec A, ठीक है। मतलब साइन ए का वैल्यू गिवन है, 10a और सेक ए का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो गिवन साइन ए इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। कैसे करते हैं, दो तरीका है, 2 मेथड्स आते हैं, दोनों मेथड ही हम लोग डिस्कस करेंगे। साइन ए इक्वल्स टू हाइट बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। तो यहां पर ये जो 3 है, देखो तो हाइट, ये 3 को डायगोनल नीचे ऐसे ला सकते हैं और हाइपोटेन्यूज को ऊपर ऐसे ला सकते हैं, देखो तो हाइपो/4 ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये 3 को डायगोनली इधर लेके चला जाओ और हाइपो को डायगोनली ऊपर लेके चला जाओ, डायगोनली तो इंटरचेंज होता है ना। दिस इक्वल्स टू के, सपोज ले लेते हैं, इसको से ले सकते हो, दैट मींस लेट। सो दिस इक्वल्स टू दिस अगर करें, हाइट बाई 3 इक्वल्स टू के, दैट मीन्स हाइट क्या आ रहा है यहां पर 3k। सिमिलरली हाइपो बाई 4 इक्वल्स टू के, सो हाइपो इक्वल्स टू क्या आ रहा है 4k आ रहा है ना, ठीक है। we know that height square plus base square equals to hypotenuse square। तो हाइट तो निकल गया ना भाई, 3k होल स्क्वायर प्लस बेस तो हम लोग जानते नहीं है, बट हाइपोटेन्यूज भी तो निकल गया 4k होल स्क्वायर। समझ में आया ना यहां पर क्या क्या चल रहा है, हा? तो यहां पर 9k स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 16k स्क्वायर, तो दैट मीन्स बेस स्क्वायर equals to 16k square minus 16k square minus 9k square, so that means base square equals to 16 से अगर मैं 9 माइनस करूं क्या आएगा 7k स्क्वायर।
सो दैट मीन्स बेस स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको तो पूरा होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो यहां पर बेस का वैल्यू चाहिए, बेस स्क्वायर का नहीं। तो बेस के ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर को तो कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए, इफ यू वांट टू कैंसिल दिस स्क्वायर, देन दिस होल टर्म शुड बी कन्वर्टेड टू द होल स्क्वायर एक्सप्रेशन। दैट मीन्स दिस, ये 7 के स्क्वायर, उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रूट 7k होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल, दैट मीन्स बेस इक्वल्स टू रूट 7k। तो आपको बेस मिल गया, हाइट भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है। नाउ यू नीड टू फाइंड 10a एंड sec a। ओके, सो लिखो, सो 10a, 10a का वैल्यू क्या है? हाइट बाय बेस, हाइट बाय बेस। तो हाइट कितना मिला? हाइट क्या था? 3k बाय बेस रूट 7k, के कैंसिल, दैट मींस 3 बाय रूट 7, ठीक है ना? के कैंसिल। फिर sec a इक्वल्स टू, sec a इक्वल्स टू, sec a का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज बाय बेस, शायद है कि नहीं? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज यहां पर क्या था? 4k बाय बेस, दैट मींस रूट 7k, दैट मींस 4 बाय रूट 7। तो 10a और sec a दोनों का वैल्यू यहां पर मिल गया, 3 बाय रूट 7 एंड 4 बाय रूट 7, ठीक है? हाँ, तो ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस भी है, ठीक है? दूसरा प्रोसेस भी है, दूसरा प्रोसेस भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, है कि नहीं? ये नॉर्मल प्रोसेस है, जनरल प्रोसेस है। तो जनरल प्रोसेस आज हम लोग सीखेंगे। नॉर्मल, जो एबनॉर्मल प्रोसेस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? हो गया, ठीक है ना? मिटा दे, हाँ, ठीक है, हो गया। नाउ ये इस टाइप का क्वेश्चंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ये एक टाइप आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक ऑन द सेम टाइप, but actually the calculation procedure will be the abnormal process. That means थोड़ा बहुत शॉर्टकट होगा, थोड़ा छोटा होगा, that means और एक प्रोसेस यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है? आओ, तो लिखो, if 15 cot a equals to 8, next, if 15 cot a equals to 8, then find sin a and sec a. Then find sin a and sec a. So given, शुरू करें, 15 cot a equals to 8. So that means cot a equals to क्या होगा? 8 by 15, ठीक है ना? मानते हैं ना ये सब, ठीक? तो हम लोग वो प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉट ए मीन्स व्हाट? हाइट बाय बेस बाय हाइट, है कि नहीं? बेस बाय हाइट वी कैन यूज, नो? सो दैट मीन्स ये यूज भी मतलब ये प्रोसेस भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और एक प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस से अप्लाई करते हैं, ठीक है? सेकंड प्रोसेस जो है हियर, देखो ठीक तरह से, एक फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं शायद, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पहला जो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया है, जिस प्रोसेस में मैंने किया है, वो प्रोसेस तो आपका क्लियर ही होगा शायद, है? अब जो अनदर प्रोसेस है, उस प्रोसेस से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो इससे दोनों प्रोसेस ही आपको पता चल जाएगा कैसे करते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके? तो ये तो फॉर्मूला है, हम लोगों ने किया है फर्स्ट लेक्चर में, देखो हम लोगों ने सॉल्व किया है ये। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ कॉट स्क्वायर थीटा मतलब यहां पर थीटा नहीं, यहां पर तो आप ए यूज करेंगे, बिकॉज यहां पर क्वेश्चन में ए दिया हुआ है। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो यहां से कोसेक स्क्वायर ए माइनस 8 by 15
whole square equals to 1. So cosec square A equals to 1 plus 8 square by 15 square. So that means 1 plus 64 by 225. तो एलसीएम करेंगे तो शायद ऐसा ही आएगा 225 प्लस 64 बाई 225, है कि नहीं? तो 225 प्लस 64 अगर मैं प्लस करूं दोनों को क्या आएगा 289 यस 289 बाई 225. So that means cosec square A equals to, so cosec square A equals to ये आ रहा है ना 289. तो 289 मतलब 17 और इधर 225, क्या कर रहा हूं ये 225 मतलब 15. इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं. प्लस माइनस भी यूज कर सकते हैं. क्या यूज करना ही पड़ेगा. प्लस माइनस बोथ साइड स्क्वायर कैंसिल. cosec A equals to 17 by 15. प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है. तो यहां पर हम लोग प्लस माइनस के मतलब उसमें सिर्फ प्लस वाला ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ना ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है. तो मैंने ASTC रूल बताया था आपको. ASTC रूल में क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ASTC रूल बताया था क्या? अगर नहीं बताया एक लेक्चर में उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो लिंक में जाके देख लेना, उसमें मैंने डिस्कस किया है, ठीक है. उसका लिंक मैं दे दूंगा इस लेक्चर में. पहले वो लेक्चर देखना, फिर उसके बाद ये लेक्चर में आना, ठीक है. तो cosec A equals to 17. दैट मींस ये जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू पॉजिटिव होगा. वो साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कोसेक हो, टेन हो, कॉट हो, व्हाटएवर इट इज. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए कुछ लिखा नहीं है कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको कंसीडर करना है क्या? अगर कुछ लिखा नहीं होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसीडर करना है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, तो प्लस माइनस वाला तो यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, है कि नहीं. तो सिर्फ प्लस वाला ही करेंगे. तो मींस आपको cosec A मिल गया. तो अगर cosec A मिल गया, मुझे बोलो sin A और cosec A में क्या रिलेशन है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है ना. देखो मैंने लिखाया है sin A और cosec A एक दूसरे का इनवर्स होता है. देखो, सो दैट मींस sin A उल्टा हो जाएगा 15 by 17. थोड़ा देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था ऐसे sin थीटा इक्वल्स टू 1 by cosec थीटा, या फिर cosec थीटा इक्वल्स टू 1 by sin थीटा, ठीक है ना. ये दोनों चीज मैंने लिखा था. मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे का ठीक उल्टा होता है. तो यहां पर साइन ए इक्वल्स टू 15 by 7. तो साइन ए का वैल्यू मिल गया. नाउ सेक ए का वैल्यू निकालना है कि नहीं? सेक ए का वैल्यू निकालना है. अच्छा, तो एक काम करते हैं, साइन ए का वैल्यू का आपको मिल गया. सो फिर से हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या है 1, है ना. तो यहां से 15 by 17 होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1. तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 15 स्क्वायर बाई 17 स्क्वायर. दैट मीन्स क्या बनेगा भाई यहां पर 225 बाई 289. सो अगर मैं माइनस करूंगा 289 माइनस 225 बाई 289. सो दैट मीन्स कॉस ए इक्वल्स टू 289 minus 25, 64 by 289. Okay, so cos square A equals to 64 by 289. तो यहां पर so cos square A equals to 8 by 17 whole square. That means cos A equals to 8 by 17. Now sec A equals to हम लोग जानते हैं 1 by cos A होता है कि नहीं. मैंने बोला था cos और sec एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं. सो cos A अगर 8 by 17 होता है, sec A क्या होगा 17 by 8 होगा. आ गया ना आंसर. दैट मींस यहां पर
आइडेंटिटी फॉर्मूलाज यूज करके ये तीन जो आइडेंटिटीज हम लोगों ने लिखा है वो प्रूफ भी हम लोगों ने किया है। वो तीन आइडेंटिटीज यूज करके भी आप ये सबका वैल्यूज निकाल सकते हैं, या फिर फर्स्ट वाला प्रोसेस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक है ना, हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इफ 3 cot A equals to 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, if 3 cot A equals to 4, if 3 cot A equals to 4, then prove that if 3 cot A equals to 4, then prove that 1 minus 10 square A by 1 plus 10 square A, 1 minus 10 square A by 1 plus 10 square A equals to cos square A minus sin square A। ये आपको प्रूफ करना है। तो यहां पर गिवन जो है आप लोग लिखिए 3 cot A equals to 4, तो दैट मीन्स cot A equals to 4 by 3। तो आप लोग दो प्रोसेस है आपके पास। कॉट ए का वैल्यू आपको पता है, अब बाकी सबका वैल्यूज आप आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, या फिर पहला वाला प्रोसेस से भी आप निकाल सकते हैं, वो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये जो है उससे भी आप निकाल सकते हैं। अब किस चीज का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए, ये प्रूफ करना है ना, तो ये प्रूफ करने के लिए tan ए का वैल्यू भी पता होना चाहिए, cos ए का वैल्यू पता होना चाहिए, sin ए का वैल्यू भी शुड बी नोन। नाउ हाउ कैन यू फाइंड this tan A and sec cos A and sin A? Agar if you know the value of cot A, then we all know that tan function and cot function they are reciprocal functions. So यहाँ पर tan A क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 3/4, क्योंकि हम लोग जानते हैं since cot A equals to 1/tan A, हम लोगों ने पहले दिन डिस्कस किया है। tan A और cot A जो है एक दूसरे का उल्टा होता है, तो cot A का वैल्यू जो होगा उसका ठीक उल्टा होगा tan A का वैल्यू, तो tan A का वैल्यू आपको मिल गया। नाउ आपको चाहिए क्या, sin A और cos A का वैल्यू, है कि नहीं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, तो sec स्क्वायर A इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर A, उधर भी लीजिए चलेंगे, 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1 प्लस 9/16, दैट मीन्स 16 प्लस 9/16, दैट इज 25/16। इसका वैल्यू sec स्क्वायर A, देखो sec स्क्वायर A ये सब एलसीएम ही हुआ है, 16 यहाँ पर एलसीएम आया, 16 1 जा 16 और यहाँ पर 9, दैट मीन्स 25/16। 25/16 को सुंदर करके 5/4 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस भी दे सकते हैं, और प्लस माइनस देने का यहाँ पर मतलब इतना नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर देखो कौन से क्वाड्रेंट के लिए निकालना है, ये तो गिवन नहीं है, तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही निकालना है, डोंट टेक टेंशन। तो sec A इक्वल्स टू 5/4, सो cos A क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 4/5, आ गया cos A का वैल्यू। नाउ sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल्स टू 1, अब sin A का वैल्यू आपको चाहिए, cos स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस cos स्क्वायर A, दैट मीन्स 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर, that means 1 minus 16/25, that means 25 minus 16/16, sorry 25, so that means 9/25, तो sin स्क्वायर A आ रहा है 9/25, तो 9 को 3 स्क्वायर, 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, so that is sin A equals to 3/5, ये आपका हो गया sin A का वैल्यू। तो यही वैल्यूज तो आपको चाहिए था, क्योंकि प्रूफ में सिर्फ यही वैल्यूज है, tan A, cos A, sin A। नाउ शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड।
लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करना है ना, दैट मींस इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होना चाहिए। तो पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। दोनों का वैल्यू अगर सेम हो गया तो प्रूफ्ड, अगर नहीं आया नॉट प्रूफ्ड। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड शुरू करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू, अब 10 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था 3/4, 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, बस वैल्यू निकाल लिए। अब तो वैल्यू आप निकालिए, 1 माइनस 9/16 और इधर 1 प्लस 9/16, दैट मींस यहां पर होगा 16 माइनस 9/16 और इधर 16 प्लस 9/16, 16 कैंसिल, दैट मींस 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 25, so that means 1 minus 10 square a by 1 plus 10 square a, इसका वैल्यू आपको क्या मिला 7/25। ठीक है, एलसीएम हुआ है ना, देखो 16 1 are 16 minus 9/16 और इधर 16 1 are 16 plus 9/16, डिनोमिनेटर कैंसिल होता है ऊपर नीचे, हम लोग जानते हैं, सो कैंसिल हो गए। नाउ RHS राइट हैंड साइड का वैल्यू, राइट हैंड साइड क्या होता है, देखो यहां पर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos a का वैल्यू आपको पता है, देखो आपने निकाल के रखा है यहां पर 4/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, दैट मींस 16 माइनस 9/25 है कि नहीं, तो दैट मींस 7/25। देखो दोनों सेम आ गए रे भाई, यहां पर देखो ये दोनों सेम आ गया। सो ऐसे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत सुंदर क्वेश्चंस हैं ये सब, है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगले दिन मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आर डी शर्मा का क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, डिफरेंट रेफरेंस बुक्स सॉल्व करेंगे। ये तो एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया, अब आर डी शर्मा शुरू करेंगे। ठीक है, आर डी शर्मा में इस टाइप का क्वेश्चंस क्या क्या है हम लोग देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, तो if you like my lectures, then please subscribe, like and share my channel. Okay, so just share with your friends, share with your neighbors, share with your classmates. Okay, but just you have to be very much conscious about that. Okay, because this class 10 level students are very much less in my channel. Okay, so that's why the views are coming less. Okay, only 11 10 12 classes are there, students are there, but 10th level students are very less here. So just try to share this 10th level classes to each and every corner of this country. Okay, so just tell them to join the class. If they will like the class, if they will that means get each and every concepts from my lectures, then they will subscribe my channel. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, stay safe and stay healthy. Bye and Jai Hind.